So there was a disconnection. Starting with money. Money is defined anything which is widely accepted, which is widely accepted in uh, in payment for goods and services or in discharge of other kinds of obligations for the payment of goods and services and to discharge any obligation. ठीक है जी. तो ये है मनी कि कोई भी चीज जो वाइडली एक्सेप्ट होती है. अब हिस्ट्री, इफ वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड एज मनी. तो यू विल बी सरप्राइज टू सी के देयर वाज एन इकोनॉमी व्हेन देयर वाज नो मनी, and that economy was called barter system. In the barter system economy, in a barter system economy, things were commodities were used as exchange of and in place of money. So if somebody needs wheat and the other one needs rice, so there was an exchange of wheat in terms of rice at defined rate at which this can be exchanged for. तो उस जमाने में barter system में there is no money, but the things were used as commodities were used as money, and they were one commodity was exchanged for other commodity. That is called barter system. ठीक है. तो barter economy जो है, it is an economy where commodities were exchanged for commodities. So no money. लेकिन as you can see, it is quite difficult to match the supply with demand. Maybe somebody has a supply of wheat, but demanders may not be demanding it, and then it is very important that if somebody wants to sell wheat, so he must find a person who wants wheat. And if he wants to get rice in return, so he must find somebody who is having rice in a need of wheat, and then they can meet each other. So definitely it was not possible when the population grew up. In a small sector, in a small economy, in a small size of population, it may be possible. But as for example, it is possible when the economy was just consist of tribes. But as a population grew up, it is not really possible to have the barter economy where the commodities were exchanged for commodities. So then what kind of money? Then there was a evolution of money. तो जो मनी थी वो गोल्ड कॉइन या सिंपल कॉइन्स, मेटल कॉइन से स्टार्ट हुई एंड मूविंग ऑन टिल करेंसी, और फिर उसके बाद डिमांड डिपॉजिट एंड ऑल. तो पहले मैं आपको टाइप ऑफ मनी बता देती हूँ, फिर मैं उसकी एवोल्यूशन का डिस्कशन कर लूंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद मनी. पहले जो बार्टर इकोनॉमी की कॉन्टेक्स्ट में कमोडिटी को मनी के तौर पे यूज किया. नंबर 2 फिर है इट्स फिएट मनी. फिएट मनी क्या होती है? Fiat money is a money which does not have any intrinsic value. A money which does not has any intrinsic value. अब इसका क्या मतलब है? देखो, if you are using a gold coin as money, it has some value because it's gold and it's precious and it's being demanded. Yeah, silver is a metal and it's being demanded. But if you talk about the currency, note of 10 rupees or something, yeah, 100 rupees, why it is accepted? It is accepted because it is the order of the government that it is to be used, and it should be exchanged in for commodities. So it is called that it has government decree. It is accepted because it has government डिग्री. लेकिन अगर हम इसको कह दें कि इसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू, द नोट डज नॉट हैज एनी इंट्रिंसिक वैल्यू. सो ये जो हम करेंसी जिससे हम ट्रेडिंग, जिससे हम एक्सचेंजेस करते हैं, जिससे हम बाइंग करते हैं, इट इज ऑल फिएट मनी. ठीक है. और इसके अलावा तीसरी तरह की मनी होती है, उसे कहते हैं स्पीसी मनी. स्पेसी मनी अजीब सा नाम है, बट इट इज जस्ट नथिंग बट
money in the form of gold and silver coins. तो money in the form of gold and silver. ठीक है जी. तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया है? I just told you that money is anything which is can be exchanged in the exchange of commodity and accepted and all. तो तीन तरह की हमने बात की. एक हमने बात की कमोडिटी एज मनी, तो वो किसमें थी? बार्टर इकोनॉमी के अंदर. तो यहाँ पर बार्टर इकोनॉमी की बजाय यहाँ पर आप वन करो commodity money, and I hope that you understand what is commodity money. When the commodity is used as money, commodity money is the first kind, fiat money is second kind, and specie money is the third type. So fiat money is any money which does not have any basic intrinsic value and it is accepted because government orders it, so it has government decree. And specie money is money in term of gold and silver. तो ये जो है ये तीन तरह की टाइप्स है मनी की, जो कि डिफरेंट टाइम में या एक ही टाइम में यूज होती रही है. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, कि मनी के अंदर क्या क्या खास बात होनी चाहिए. जो वॉट एवर द टाइप वी आर यूजिंग, ईदर वी आर यूजिंग कमोडिटी एज मनी और वी आर यूजिंग फिएट मनी और वी आर यूजिंग स्पीसी मनी, तो व्हाट कैरेक्टरिस्टिक इट शुड हैव टू बी ट्रीटेड एज मनी. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी. ठीक है जी, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक मनी जो है वो है जी, मनी मस्ट बी पोर्टेबल. पहला क्या है? पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज लेके जा सके एक जगह से दूसरी जगह आसानी से. सो डू यू थिंक गोल्ड कॉइन आर पोर्टेबल इजीली, और फिएट मनी इज बेटर और कमोडिटी इज बेटर? यू विल फाइंड fiat money is the best portable money. So this characteristic of portability holds in the fiat money as compared to gold specie money as well as in terms of commodity money. So it can be easily transferred from one person to another person and can be easily exchanges for the product. Easy बात है, इसलिए इसको ज्यादा नहीं लिखते. सेकेंड है, मनी मस्ट बी रीजनेबली ड्यूरेबल. ड्यूरेबिलिटी का क्या मतलब होता है? मनी मस्ट बी रीजनेबली ड्यूरेबल. ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जो खराब ना हो सके. तो व्हाट डू यू थिंक, कौन सी ज्यादा ड्यूरेबिलिटी है, कमोडिटी के अंदर, स्पीसी के अंदर या फिएट के अंदर? ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा जो ड्यूरेबिलिटी है वो गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स है उसके कंपैरिजन में एज कम्पेयर टू फिएट मनी. और ऑल्दो कि वी यूज फिएट मनी विच इज मनी करेंसी and it is not like if we use it exchange for 1 or 2 times, so it just perishes out. So it is made of in such a way, it is made of such materials that its durability is there. Okay, so money does not damage, deteriorate when it is handled. Paper money is less durable but can be replaced when demanded. ठीक है, आपको पता है जो नोट खराब हो जाते हैं वो बैंक आपसे चेंज कर लेता है. तीसरी जो खास बात है इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक में, कि मनी शुड बी इजीली डिविजिबल. डिविजिबिलिटी का क्या मतलब हुआ? एज यू अंडरस्टैंड कि एक्सचेंज जो जब इसको चेंज कर सकें. ठीक है, ऐसा ना हो कि ये डिविजिबल ना हो. सो मनी शुड बी इजीली डिविजिबल इनटू स्मॉलर यूनिट्स सो दैट पीपल कैन यूज ओनली एज मच एज दे नीड फॉर ट्रांजेक्शन. राइट, वहां पे कोई हर्डल नहीं आना चाहिए. नंबर 4 पे है, मनी मस्ट बी अवेलेबल in limited supply. This is most important point. Money must be available in limited supply. ये जो बात है ना, ये आप समझोगे जब आप मनी मॉनेटरी पॉलिसी को समझोगे. सो बस ये समझ लें कि when there is a excess circulation of money in the economy, it results in inflation, and inflation is something in which the intrinsic value of money goes down. That means that if you are able to buy something in 100 rupees today, if there is inflation, so it's quite possible that the same commodity is available not for 100 rupees but maybe for 500 rupees. So you are very well aware of what is the meaning of inflation, how does it reduces the intrinsic value of money, how the commodities can be bought less for the same amount of money. तो ये कैसे होता है? अगर आप मनी की सर्कुलेशन को कंट्रोल नहीं करते. अगर आपकी इकोनॉमी जो है, आपकी सेंट्रल बैंक बहुत ज्यादा नोट छाप के सर्कुलेट कर दे मनी में, तो फिर अनलिमिटेड सप्लाई हो जाएगी मनी की. एंड जितनी ज्यादा मनी को हम अनलिमिटेड सप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा मनी की वैल्यू डिक्रीज होती है. सो इट शुड बी अवेलेबल इन लिमिटेड सप्लाई. इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है फंक्शंस के फंक्शंस ऑफ मनी. फंक्शंस ऑफ मनी
जब हमने यूनिवर्सिटी में पहली दफ़ा इकोनॉमिक्स को पढ़ा था जब मैंने, तो मेरे टीचर ने हमें एक शेर याद करवाया था, मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शन 4। 4 फंक्शन होते हैं मनी के, अ मीडियम, अ मेजर, a standard, a store, सॉरी इससे इरेज नहीं हो रहा, अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टैंडर्ड, अ स्टोर। ए और एस अलग अलग है। ये 4 फंक्शन है मनी के। मीडियम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मेजर ऑफ वैल्यू है, स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट है, एंड स्टोर ऑफ वैल्यू है। ठीक है, तो ये 4 मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि ये होता क्या है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है इट इज वाइडली एक्सेप्टेबल to exchange from one commodity to the commodities. This can be used as a medium of exchange to buy the goods and services. It should be that it is accepted by all parties as permanent for goods and services. It should be एनीथिंग विच इज यूज फॉर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज ट्रीटेड एज मनी। तो पास्ट के अंदर सिगरेट्स समहाउ समवेयर यूज्ड एज मनी, गोल्ड, सिल्वर और सॉल्ट इज आल्सो बीइंग यूज्ड एज अ एक्सचेंज एज एन एक्सचेंज फॉर इन टर्म ऑफ मनी। तो जो भी चीज एक्सचेंज में यूज होती है दैट इज ट्रीटेड एज मनी। सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरे नंबर पे क्या चीज है? मेजर ऑफ वैल्यू। सो मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब ये है कि एनीथिंग इज रिगार्डेड एज मनी विच हैज सम वैल्यू एंड वी कैन काउंट इट्स वर्थ और वैल्यू, and that worth is understandable by most of the people. For example, if you have 5,000 rupees, so you know the worth and the value, and 100 rupees has different worth, so it has measure, should be taken as measure of value. उसके बाद है store of value, a function of money that allows people to preserve value for future use. So it should be not only as a measure of value but it can preserve value. Store of value, स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है कि लोग जो है इसको अपनी जो वैल्यू है करेंसी की इसको स्टोर कर सके जिस चीज में, वो इट शुड बी द मनी शुड बी हैविंग अ फंक्शन ऑफ स्टोरिंग द वैल्यू. So if you want to use it for saving purpose, that doesn't mean that in the future it would not have any value. It should be having the value. The value can volatile, but it must be having some value. So people can preserve it for future use as well. So that is all from the function of money. So moving on to the modern forms of money, क्या क्या है आजकल जो यूज होती है. Let me take it down. Modern forms of money. तो इनिशियली जो मॉडर्न फॉर्म्स में क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं, एक हो रही है करेंसी, नोट. दूसरी चीज जो यूज हो रही है दैट इज मेटालिक कॉइन्स. और तीसरी चीज जो यूज हो रही है वो डिमांड डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट अकाउंट्स. ये कहाँ पर होते हैं? बैंक के अंदर आपका अकाउंट खुला होता है जिसे डिमांड डिपॉजिट कहते हैं. 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं, एक करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट, और एक आपका होता है सेविंग अकाउंट. ठीक है जी, सेविंग अकाउंट. तो डिमांड डिपॉजिट जो है इट बिलोंग्स टू करंट अकाउंट. तो डिमांड डिपॉजिट अकाउंट्स क्या होते हैं? दैट अकाउंट फ्रॉम विच फंड्स कैन बी रिमूव्ड बाय राइटिंग अ चेक एंड विदाउट हैविंग टू गेन प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन. मतलब आपने चेक लिखा और आपको पैसे मिल गए. सो इट्स जस्ट लाइक यू आर हैविंग कैश इन योर हैंड. तो 3 तरह की है करेंसी, यू अंडरस्टैंड बेटर, मेटालिक, and then demand deposit is also taken as
एज मनी। तो मॉडर्न टाइप ऑफ मनी में जो है इसको भी कैटेगराइज एज M1। M1 इज अ मनी टाइप। मनी M1 में क्या क्या शामिल है? इट इंक्लूड्स कॉइन एंड करेंसी, ठीक है। इसके अलावा इसमें ट्रेवलर्स चेक्स और ऑल्सो ट्रीटेड एज मनी। ट्रेवलर्स चेक ये सब मॉडर्न मनी है, ठीक है। उसके बाद डिमांड डिपॉजिट्स, ये मैंने आपको जो बताया DDA अकाउंट्स, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट्स। तो आई वुड जस्ट राइट DDA, ये डी है, ठीक है जी। और इसके अलावा दैट्स इट। उसके अलावा M2 होती है। M2 जो है वो ये दिस मनी डेफिनेशन गोज विद मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट मोर गोज विद मीडियम ऑफ एक्सचेंज कि इट इज वाइडली एक्सेप्टेबल टू एक्सचेंज एंड टू गेट कमोडिटीज इंस्टेड ऑफ इट। लेकिन M2 जो है वो स्टोर ऑफ वैल्यू के कॉन्सेप्ट में ज्यादा आती है, स्टोर ऑफ वैल्यू। और इसके अंदर जो चीजें शामिल है M1 इसके अंदर शामिल है ऑलरेडी। इसके अलावा it includes saving deposits, time deposits and money market funds. Saving deposits, saving deposits क्या होते हैं? जिनको आप एक टाइम से पहले टेक आउट नहीं कर सकते। 3 months के भी होते हैं, 6 months के होते हैं, 1 year के होते हैं। So you can't, it is not that flexible and liquid cash as demand deposits are. So saving deposits and then time deposits, टाइम डिपॉजिट्स ये भी टाइम एक टाइम के लिए फिक्स हो जाते हैं, उसके पहले नहीं आप ले सकते। एंड इसी तरह से मनी मार्केट फंड्स, ये सब क्या है? ये M2 है। सो मॉडर्न मनी इज पोर्टेबल, ड्यूरेबल, डिविजिबल एंड अवेलेबल in limited quantity, that what is required by functions of money. Okay, so my next topic is about we are done with the basic definitions of money, इसके function, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और मॉडर्न मनी क्या होती है, M1 क्या है, M2 क्या है। अब हम चलेंगे टूवर्ड्स दैट हु इज एन अथॉरिटी टू सर्कुलेट दिस मनी इनटू द इकोनॉमी, दैट इज सेंट्रल बैंक। पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, SBP, established in 1948 और इसे कायदे आजम ने स्टैब्लिश किया था, ठीक है जी। ये अब इसका काम क्या रहता है? व्हाट इज स्टेट बैंक? इट इज एन ऑटोनमस और सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रस्टेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ट्रस्ट करती है टू एडमिनिस्टर की मॉनेटरी फंक्शंस। तो गवर्नमेंट उनको अलाउ करती है मॉनेटरी फंक्शंस करने के लिए। एंड व्हाट आर दे? इशू एंड मैनेज कंट्री करेंसी, रेगुलेट द अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई, supervise the operations of money supply and serve as bankers bank। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि करेंसी कहाँ से आती है? सेंट्रल बैंक इशू करता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इशू करता है, प्रिंटिंग करता है। और इट वर्क्स टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी एज वेल एज इट इज अ बैंक ऑफ द बैंकर्स। यानी जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनका जो बैंकर है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है जी। और इसकी जो है अगर हम देखें कि बाकी चीजों में डिटेल में नहीं जाऊंगी, तो क्या करता है स्टेट बैंक? स्टेट बैंक रन्स द मॉनेटरी पॉलिसी। So and what monetary policy is used for? It is used to stabilize economy. Stabilization का क्या मतलब है? If the economy is in recession, to convert them to into recovery, और अगर वो किसी डाउनफॉल में है, डिप्रेशन में है, तो स्टेट बैंक जो है वो अपनी पॉलिसीज अडॉप्ट करता है so that they can minimize the economic fluctuation. Minimization of economic fluctuation is called stabilization, and one of the sector which contributes into it is State Bank of Pakistan, and the operation is done is called monetary policy. So monetary policy belongs to State Bank of Pakistan. यानी किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक को की जो पॉलिसी होती है दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। दे डील विद मनी सप्लाई, एंड यू नो व्हाट इज मनी सप्लाई? M1 एंड M2 इसके साथ ये डील करते हैं एंड दे ट्राई टू स्टेबलाइज इकोनॉमी यूजिंग दीज इंस्ट्रूमेंट। इसके अलावा भी बहुत डिटेल्स है जो कि मैं भी आपसे डिस्कस करूंगी। इसके अलावा कौन सी और पॉलिसी होती है जो कि इकोनॉमी को स्टेबलाइज करती है? दैट इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। तो इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी के बाद आई विल गो थ्रू द फिस्कल पॉलिसी। सो लेट्स स्टार्ट विद मॉनेटरी पॉलिसी। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? Conducting a monetary policy, and who does it? State Bank of Pakistan.
मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है जी। कौन करता है ये? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो लेट्स सी व्हाट इज इट. So in order to control and the operation, in order to control money supply and to stabilize economy, central bank apply monetary policy. What is monetary policy? It is action by the central bank to extend or contract the money supply in order to affect cost of availability of credit. Now ये क्या है? Let me repeat it again. Action by central bank to expand or contract. What to do? To expand or contract the money supply. Why do it? They do it in order to affect cost and availability of credit. तो cost and availability of credit. अब credit क्या चीज होती है? Credit होती है money supply. ठीक है जी। और who takes money from the banks? Generally investors who needs money, they borrow from banks. So the borrowing has a cost, and that cost is interest rate. So what does the State Bank of Pakistan do in order to control it? That whenever they want people to invest more, they make this credit available at lower interest rate, and that lower interest rate affects the investment decision by investors because they find it attractive, as the credits are now available at lower interest rate, so investment goes up and economy boosts up. Whenever they requires to reduce the economic activity into a country due to different requirements of stabilization, what they do, they increase interest rate, and in that case borrowing would become expensive, and then investment and economic activity is slow down. तो बेसिकली इनके पास दो ही चीजें, एक होता है या तो इंटरेस्ट रेट को या इंक्रीज करना या फिर इसको डिक्रीज करना. इंक्रीज करना इज कॉल्ड टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, इसे कहते हैं टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, और इसे कहते हैं इजी मॉनेटरी पॉलिसी. ठीक है जी, इजी मॉनेटरी पॉलिसी. और कैसे वो करते हैं? मनी सप्लाई को कंट्रोल करके. क्यों कर सकते हैं? इसके लिए मैं थोड़ी सी डायग्राम बनाती हूँ. यहाँ पर समझ लो कि मनी है, जो भी मार्केट, देखो मनी एक कमोडिटी है और उसकी एक मार्केट है. किसी भी चीज की मार्केट हो तो उसका डिमांड भी होता है और उसकी सप्लाई भी होती है. किस चीज की डिमांड? मनी की डिमांड. किसकी सप्लाई? मनी की सप्लाई. मनी की सप्लाई कौन करता है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. तो हम इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये फिक्स है, ऐसे करके ये मनी सप्लाई है. जो मनी डिमांड है वो कौन करता है? दोज हु वांट टू रन द बिजनेस and they want to do the business. So so who demands money? The investors. So why they demand it? For investment purpose. So borrowing money is being done, or demanding money is being done from the investors. And what is the cost of buying money? They would have to pay interest rate. So what will happen if the interest rate goes up? Definitely demand for money will go down, and when interest rate goes down, then demand for money will go up, because interest rate is the cost of borrowing money. तो किसी भी चीज की प्राइस के साथ उस कमोडिटी की डिमांड जो होती है वो नेगेटिवली रिलेटेड होती है. कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी. तो इसका मतलब है कि डिमांड ऑफ मनी के साथ इंटरेस्ट रेट के साथ नेगेटिव लिंक होगा. सो इफ आई हैव हियर इंटरेस्ट रेट और यहाँ पे मनी डिमांड का मैं कर्व बनाऊं, तो इट वुड गो लाइक दिस, डिमांड फॉर मनी. तो ये मनी सप्लाई है, मनी डिमांड है, इसकी इंटरसेक्शन से क्या डिटरमिन हो रहा है? इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर बार कह लें इसे. आर से रिप्रेजेंट भी करते हैं और आई से रिप्रेजेंट भी करते हैं. ठीक है जी. तो अगर गवर्नमेंट जो है वो इजी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करती है, तो व्हाट दे डू, दे ट्राई टू रिड्यूस मनी सप्लाई. हाउ इट इज पॉसिबल? It is possible if money supply increases. So whenever they want to reduce money supply, look at this. Whenever I am reducing कह रही थी मैं. If I increasing money supply and the intersection takes place at this point, and this is like R1, R1 has gone down. R1 is less than R bar, so it is called easy monetary policy because interest rate has gone down, which will result in low cost of borrowing money. More people will borrow, more investment will come up, and economy will grow. और दूसरी तरह की क्या हो सकती है? ये है इजी मॉनेटरी पॉलिसी. और अगर मैं टाइट मॉनेटरी पॉलिसी की बात करूं तो उसका ग्राफ कैसे होगा? टाइट मॉनेटरी पॉलिसी इज अ सिचुएशन वेयर
government wants the state bank to increase interest rate. So यहाँ पे money demand और money supply, यहाँ पे interest rate या R कह लें इसको, और ये है आपका original curve और ये आपका है original money demand. And this is what is happening in tight monetary policy, that money supply MS naught कह लें इसको, it will decrease, and as a result जो interest rate है R bar से R1 पे आ जाएगा, where R1 now is higher than R bar. तो this is tight monetary policy which will definitely reduce the economic activity. तो गवर्नमेंट के पास जो है वो ये दो, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या किसी भी सेंट्रल बैंक के पास दो तरह की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी या इजी मॉनेटरी पॉलिसी, डिपेंडेंट, and it is all dependent upon what is the requirement of the economy, whether they need to increase interest rate to stabilize economy, or they do need to decrease interest rate to mobile economy. So they generally target the interest rate to vary with a change in interest rate. अच्छा, change in money supply. अच्छा, अब इसको जो वो operations ये करते हैं to the change of interest rate, how does it take place? It takes place through some tools of monetary policy. ये जो interest rate है ये कैसे change होता है? मनी सप्लाई के इंक्रीज डिक्रीज से, बट मनी सप्लाई को डायरेक्टली भी कंट्रोल किया जा सकता है और इनडायरेक्टली भी मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है. डायरेक्टली कैसे होगा कि जी आप व्हेन एवर इकोनॉमी नीड्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू गो डाउन, सेंट्रल बैंक कम्स अप एंड दे प्रिंट न्यू मनी एंड दे सेंड इट इन द मार्केट. दिस इज डायरेक्टली इन्फ्यूजन ऑफ मनी सप्लाई इन द मार्केट. ठीक है, लेकिन अब मनी सप्लाई को एक दफा इन्फ्यूज करना तो आसान है, लेकिन उसको वापस कैसे लिया जाएगा? सपोज गवर्नमेंट वांट्स द मनी सप्लाई टू रिड्यूस फ्रॉम द इकोनॉमी, कम करना है, तो ऐसे तो नहीं होगा कि वो लोगों से कहेगा अपने अपने पैसे हमें दे दो. उसके लिए देयर मस्ट बी सम वे, देयर शुड बी सम टूल्स विच कैन बी यूज टू कंट्रोल दैट सर्कुलेशन ऑफ मनी सप्लाई. तो वो कौन से टूल्स हैं जो कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. सो टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, तीन टूल्स हैं बड़े आसान से, और बड़ा आसान है इनको समझना. सो लेट मी राइट डाउन ओवर हियर एंड देन टू एक्सप्लेन टू यू. और याद रखें कि टूल्स किससे यूज हो रहे हैं? मनी सर्कुलेशन को कम करने के लिए या इंक्रीज करने के लिए. पहला टूल है रिजर्व रिक्वायरमेंट. दूसरा टूल है ओपन मार्केट ऑपरेशन. ठीक है जी. और तीसरा टूल है डिस्काउंट रेट. अब रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या है? रिजर्व रिक्वायरमेंट ये है, सेंट्रल बैंक इज द बैंकर ऑफ द बैंक्स. मतलब जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनका जो बैंकर है, जो बैंक है, वो सेंट्रल बैंक है. सो सेंट्रल बैंक एट द टॉप लेवल एंड देन कमर्शियल बैंक आर वर्किंग अंडर सेंट्रल बैंक. अब सेंट्रल बैंक कैन मेक डिफरेंट पॉलिसी एंड दे कैन चेंज पॉलिसी. एक पॉलिसी सेंट्रल बैंक की होती है, इसको कहते हैं रिजर्व रिक्वायरमेंट. व्हाट इज रिजर्व रिक्वायरमेंट? रिजर्व रिक्वायरमेंट इज द रिक्वायरमेंट बाय द कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? जो सेंट्रल के नीचे काम करते हैं. कमर्शियल बैंक को एक रिजर्व रिक्वायरमेंट दी जाती है दैट व्हेन एवर दे आर लेंडिंग मनी, तो वो दे हैव टू कीप सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एज रिजर्व. तो कमर्शियल बैंक का ऑपरेशन क्या होता है कि दे कलेक्ट मनी, दे डिपॉजिट पीपल्स मनी, and then they keep a certain amount as reserve requirement, and that amount has to be kept within the commercial bank and the remaining amount is lended onwards. तो जितनी ज्यादा वो लेंडिंग होती है उतनी ज्यादा मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज करती है. अब वो रिजर्व रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 1%, 2%. पाकिस्तान में ये है 4%. तो क्या होता है कि लेट्स से अगर किसी इफ सम बैंक, कमर्शियल बैंक कलेक्टेड 1 लाख रुपीज, so the requirement is that the 4% of this 1 lakh जो है it should be deposited and kept as reserve requirement within the commercial bank, and then remaining 96% of the money can be lended. So you can see from your you can see from your point of view that when the government wants that the money circulation should go up, what they will do with the reserve requirement? Do you know, lesser the reserve requirement, more the money can be lended and more the money supply can be increased. So of course, in order to control money, reserve requirement will increase, and that will let commercial bank to lend less money for further money circulation.
तो रिजर्व रिक्वायरमेंट के इंक्रीज करने से लेस मनी सर्कुलेशन होगी, और इसके कम करने से ज्यादा मनी सर्कुलेशन होगा. हु डिसाइड्स दैट रिक्वायरमेंट रेशियो? That is done by central bank. So central bank can control money supply through the reserve requirement. If they increase reserve requirement, money circulation will reduce, and if they decrease reserve requirement, money circulation will increase. And this is the way they can keep a check on economy, and their objective is to stabilize the economy by these policy. Open market operation. What is the open market operation? ओपन मार्केट ऑपरेशन ये होता है कि ये सेंट्रल बैंक डायरेक्टली करता है. मतलब ये तो है ना, रिजर्व रिक्वायरमेंट इज द इनडायरेक्ट action of the central bank where he actually approach commercial bank and make policy, and they control money supply through commercial bank. Open market operation is a direct operation of the central bank, जहां पर central bank क्या करता है कि कुछ bonds and securities issue करता है, और उसकी कुछ वैल्यू होती है, जैसे 100 रुपए, 1000 रुपए, लाख रुपए, जो भी कितने की भी होती है, और वो उसको ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू लोगों में सेल करता है. पीपल कम एंड बाय इट. So what they do, they buy the security and they deposit the money within the bank. For example, if you have defense saving certificate or you have special saving certificates, so you have bought it from the central bank, and central bank have a certain promise ke they will return this money with this much of increment after certain time period, 3 साल के बाद या 10 साल के बाद. लेकिन apparently क्या हो रहा है कि you are keeping the certificate and your money is being deposited to bank. So in this way, once they want to tighten the monetary policy and they want to reduce the money circulation from the economy, they sell their bonds and security, and in this way they keep the money within them, and circulation of the money in the economy reduces. और अगर वो चाहते हैं कि मनी सप्लाई को जो है वो इंक्रीज किया जाए, तो वो अपनी सिक्योरिटीज को बाय कर सकते हैं. सो दिस इज द वे, इट्स कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन, थ्रू विच बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द मनी सप्लाई, मनी सर्कुलेशन इनटू द इकोनॉमी. तीसरा है डिस्काउंट रेट. डिस्काउंट रेट, जैसे कि आप कमर्शियल बैंक से अगर लोन लेते हैं तो दे गिव यू लोन एट सर्टन परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रेट, के 10%, 15% पे आपको इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, विच यू विल हैव टू पे बैक. एंड ऑफ कोर्स इफ यू विल बी आस्क्ड टू गिव मोर इंटरेस्ट रेट, यू विल बी एबल टू बोरो लेस. इसी तरीके से commercial banks also borrow from the central banks, and the rate at which they borrow is called discount rate. So if central bank wants less circulation of money, so they want the commercial bank to lend less money, so they will increase discount rate. That means that if they were, let's say, initially borrowing, the commercial bank were borrowing from the central bank at 10%, and now central bank is interested to reduce the money supply circulation in the economy, तो वो क्या करेंगे, वो डिस्काउंट रेट को इंक्रीज कर देंगे, let's say 15%. So that means that now the commercial bank can borrow money from central bank at the rate of 15%, which they find expensive, so they will be less inclined to borrow, and consequently the money less lending is there, and then money circulation from the economy is controlled. So this is the way money circulation can be controlled through these tools of monetary policy: the reserve requirement, open market operation, and discount rate. And State Bank of Pakistan or Central Bank of any country can apply the monetary policy as tight or easy to stabilize the economy. So that was all from the money side. Now we'll have to move on to the next thing, which is called fiscal policy. Fiscal policy is also a policy adopted by government. Monetary policy is adopted by central bank, ठीक है जी, और जो फिस्कल पॉलिसी है ये अडॉप्ट करती है गवर्नमेंट. और इसके जो टूल्स होते हैं वो होते हैं टैक्सेस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है जी, और ट्रांसफर, सब्सिडीज, ये सारा क्या ये फिस्कल पॉलिसी है. और इन सारों का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वही कि आपने इकोनॉमी को टाइट पॉलिसीज देनी है, यानी आपने गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमी को इम्प्रूव करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहती है इकोनॉमिक एक्टिविटी को, या वो डिक्रीज करना चाहती है. तो फिस्कल पॉलिसी के दो तरह की फिस्कल पॉलिसी है. एक को कहते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी,
और दूसरी को कहते हैं कॉन्टेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। तो टूल्स मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट, टैक्स रेट ऑफ टैक्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये इसके मेन टूल्स हैं। तो अगर गवर्नमेंट एक्सपैंड करना चाहती है इकोनॉमी को, तो व्हाट दे विल डू, दे विल डिक्रीज टैक्स रेट डिक्रीजेस, और जी को वो इंक्रीज करेगी। तो ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है। कॉन्टेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होगी कि टैक्स रेट को इंक्रीज किया जाएगा और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को डिक्रीज किया जाएगा। ये डिपेंड करता है व्हाट इज द सिचुएशन एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड रिक्वायरमेंट, government opt contextually or expansionary fiscal policy, and the objective of the both policies is to stabilize economy. That is all from the policy side. Now the next last topic would be from development economics. Thank you.